So greetings to you all in Jesus' mighty name. मसीह यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। So we were discussing about something that is entitled as that end to your worries is here. हम पिछली बार इस बात पर चर्चा कर रहे थे जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि आपकी चिंताओं का अंत यहाँ पर है। Repeat after me that the end to my worries is here. मेरे पीछे दोहराएं कि मेरी समस्याओं का अंत यहाँ पर है। The end to my worries is here. मेरी चिंताओं का अंत यहाँ पर है। And previously we have understood that और पिछली बार हमने ये समझा था that our God cares for us 10 times more than we do care for ourselves. जो हमारा परमेश्वर है वो हम जो जितनी चिंता अपने खुद की करते हैं उससे 10 गुना बढ़ करके वो हमारी चिंता करता है। So instead of worrying about something, तो फिर किसी बात पर चिंता करने के बजाय that what we have to do in order to put a full stop upon our worries, कि हम अपनी चिंताओं का अंत, चिंताओं पे पूर्ण विराम कैसे लगाएं, all we need to do is हमें सिर्फ यह करना है, we need to pour out our worries upon the Lord. हमें अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर उंडेल देना है। We need to pour it out and leave it unto Him alone. हमें अपनी समस्याओं को, चिंताओं को उंडेलना है और उसे वहीं छोड़ना है उसके सम्मुख, Because He cares for us. क्योंकि वो हमारा ध्यान करता है, Because He is the Malay God. क्योंकि वो मलई खुदा है, God, the one who cares for us 10 times more than we care for ourselves. पर ऐसा परमेश्वर जो जितनी हम अपने आप की चिंता करते हैं उससे 10 गुना बढ़ करके चिंता करने वाला परमेश्वर So है। instead of getting worried about something and getting to nowhere, तो किसी बात पर चिंता करने के बजाय और कोई अंत पर ना पहुंचने के बजाय all you and I need to do is सिर्फ आपको और मुझे यह करना है, we need to just pour out our problems unto God. हमें हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर उंडेल देना है। We need to hand over our case of problems into the hand of God हमें अपनी चिंताओं का केस को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है and let Him deal with it. और उसे ध्यान करने दीजिए। Let Him deal with all your problems of your life. परमेश्वर को आपकी जीवन की हर एक उस चिंताओं से डील करने दीजिए। Pour out your problems, pour out your issues, pour out your concerns, pour out your care, everything upon God. अपनी सारी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को, अपनी परवाह को, सब कुछ परमेश्वर के सामने उंडेल दें And let Him take control over everything. और उसको उसके ऊपर नियंत्रण लेने दीजिए, Because that's how you can end all your worries. क्योंकि ऐसा कर कर ही आप अपनी चिंताओं का अंत कर सकते हैं। I say that's how you can end all your worries. मैं कह रहा हूं कि ऐसा करके ही आप अपनी चिंताओं को अंत कर सकते हैं। Now, if that's what Adam and Eve have done in the very beginning, और अगर ऐसा आदम और हवा ने शुरुआत में ही किया होता, then the whole story would be totally different. तो आज जो पूरी कहानी है वो बिल्कुल अलग होती। If they would have learned that how to pour out their issues, अगर उन्होंने ये सीखा होता कि अपनी समस्याओं को कैसे उंडेलें, if they would have learned that how to pour out their worries, अगर उन्होंने ये सीखा होता कि अपनी चिंताओं को कैसे उंडेलें, if they would have learned that how to pour out every problem of their life in the very exact moment, अगर उन्होंने ये सीखा होता कि जिस क्षण उनके जीवन में समस्या आई उसी क्षण अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने उंडेलते, then the whole story would be totally different. तो पूरी कहानी आज अलग होती। The moment when they were first introduced with the very first problem of their life, वो क्षण, जो वो समय जब उन्हें उनके जीवन में पहली बार पहली समस्या से परिचय हुआ, if they have poured out that first problem into the hands of God, अगर उन्होंने उस पहली समस्या को ही परमेश्वर के सामने उंडेला होता, if they would have brought that first issue from which they were going through and dealing through in front of God's eye, अगर उनके जीवन की वो पहली समस्या जिससे वो डील कर रहे थे, अगर उसे वो परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आते, then the whole story would be totally and completely different. तो जो पूरी कहानी है वो आज बिल्कुल अलग होती। In fact, the picture of Garden of Eden वरन जो अदन की वाटिका की तस्वीर है is actually the picture of perfection. वो असल में एक सिद्धता की तस्वीर है। I said that the picture of Garden of Eden is actually the picture of perfection. मैं कह रहा हूँ कि अदन की वाटिका की जो तस्वीर है वो असल में एक सिद्धता की तस्वीर है, Because in that garden, क्योंकि उस वाटिका में there are no words like tension, there are no words like worry, there are no words like anxiety, nothing at all. क्योंकि वहां पर ऐसे कोई
शब्द नहीं थे, जिस जैसे चिंता करके कोई शब्द नहीं था, परेशानी, समस्या या ध्यान करना, ऐसे कोई शब्द नहीं थे। In that Garden of Eden, उस अदन की वाटिका में there are no tensions, कोई समस्या नहीं थी, there were no worries, कोई चिंता नहीं थी, there were no anxiety, कोई और परेशानी नहीं nothing थी, at all. कुछ भी नहीं था। But all you will gonna experience in that garden, लेकिन उस वाटिका में आप सिर्फ एक ही चीज का अनुभव करते, and that is God's tender 10x care for you. लेकिन परमेश्वर की वो 10 गुना बढ़ी हुई परवाह का सिर्फ आप वहां पर उससे वो जानते। Hallelujah. 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 I Hallelujah. said that you will gonna experience God's 10x care for you in that garden. मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की आपके लिए जो 10 गुना बढ़ करके परवाह है, आप उस चीज को, उस बात को उस वाटिका में अनुभव करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Where He prepares the meals for you. जहां पर वो आपके लिए भोज का प्रबंध करता Where He है, prepares the bed for you to take rest. जहां पर वो आपके लिए बिस्तर का प्रबंध करता है कि आप आए और उस पर आराम करें, Where He do everything by His own for you. जहां पर वो हर एक चीज को अपने आप करता है आपके लिए। All you need to do is आपको सिर्फ यह करना है, just rest and do your best in what He has appointed you for. बस आराम करें और अपना 100% दे, अपना बेस्ट दे कि जो कार्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे करने में। Hallelujah. 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 So you see that's what the actual and primary plan of God for you and I. तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का वो असल प्लान था। Hallelujah. I said that Hallelujah. this was the actual and primary plan for you and I that God has created and planned for. मैं कह रहा हूं कि ये जो है परमेश्वर का असल और प्रमुख रूप से जो प्लान था आपके और मेरे लिए, वो यह था, That is to live a carefree life. यह है कि निश्चिंत होकर के जीवन को जीना। Hallelujah. That is to Hallelujah. live a carefree life. मैं कह रहा हूं कि निश्चिंत होकर के जीवन को जीना। But we all know that somehow things got bad. पर हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि चीजें बिगड़ी, And we, the mankind, begin to worry more and more as we grow more and more. और हम जो मनुष्य जाति है, जिस प्रकार उम्र में बढ़ते गए, चिंताओं के साथ भी बढ़ते गए। We begin to worry more and more as we gonna face the challenges on this world more and more. जिस प्रकार हमने इस संसार में नई नई चुनौतियों को देखा, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारी समस्याएं भी, चिंताएं भी बढ़ती गई। But still the word of God is instructing us concerning worries. लेकिन परमेश्वर का वचन है, वो हमें इस बात का निर्देश दे रहा है कि चिंताओं के बारे में क्या करना है। Hallelujah. हालेलुया। In the epistle of 1 Peter chapter 5 verse 7 it says, पतरस की पहली पत्री उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार कहता है। in verse 7 Peter is instructing us the way to put an end to our worries. 7वें वचन में पतरस हमें ये समझा रहा है कि अपनी चिंताओं का अंत कैसे करें। It can be done only by pouring it out or by casting it out. ये सिर्फ इस प्रकार हो सकता है कि आप उसे उंडेल दें या उसे बाहर निकाल दें। You need to pour out your worries unto the Lord. आपको अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने उंडेलने की जरूरत You है। need to cast it out unto the Lord. परमेश्वर को उसे सौंप देने की जरूरत है। You need to turn your problems towards Jesus. आपको अपनी समस्याओं को यीशु मसीह की ओर मोड़ देने की जरूरत है। Hallelujah. 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 In fact, Jesus also did the same by instructing the same thing regarding worries in one of his so famous sermon of the Mount. यीशु मसीह ने भी इस प्रकार ही करा, चिंताओं के बारे में लोगों को सिखाया उनके बहुत ही प्रमुख पहाड़ी उपदेश में। Hallelujah. We see Hallelujah. that in the Gospel of Matthew chapter 6. हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में Verse 25, verse 31 and verse 34 it says like that. परमेश्वर का जो वचन है वो 25वें वचन में, 31वें वचन में और 34वें वचन में इस प्रकार कहता है। It says in Matthew chapter 6 verse 25. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 25वें वचन में इस प्रकार कहता है। Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, that what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्रों से बढ़कर नहीं? The scripture goes on in verse 31, it says like that.
वचन आगे 31वें वचन में इस प्रकार कहता है, Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। The verse goes on in verse 34. It says it says like this. आगे आगे हम अगर वचन को पढ़ें तो 34वें पद में वो इस प्रकार कहता है, Therefore, do not worry about your tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Now, notice if you remember तो ध्यान दें, अगर आपको याद हो that whatever the Bible emphasizes upon something more than once, then it is considered to be more important. अगर परमेश्वर का वचन किसी एक बात के ऊपर ज्यादा बार बोल रहा है या आपके ध्यान को लेकर के आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो बहुत जरूरी है। I said that whatever the Bible is emphasizing upon something, मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल किसी बात के ऊपर जोर दे रही है and something that is mentioned more than once, और ऐसी चीज जो बाइबल में एक से ज्यादा बार लिखी हुई है, then it is more important for you and I to understand. तो आपके और मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि हम उसे समझें। But what if the Bible is emphasizing upon something again and again and back to back in the same passage of that scripture? पर ऐसा क्या है कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक ही बात के ऊपर एक ही अध्याय में बार बार उस बात को कह रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Well, I consider that as the Trinity God, all three of them saying and teaching us the same thing through that Sermon of the Mount. तो मैं इसे मानता हूं कि उस पहाड़ी उपदेश के द्वारा हमारे जो त्रिएक परमेश्वर है, तीनों मिल करके एक ही बात को हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। All together in Matthew 6. सब मिल करके मत्ती के 6वें अध्याय में, In the same chapter itself, again and again, back to back. उसी एक ही अध्याय में बार बार एक ही बात। You can see this word "do not worry" has been commonly used again and again, totally 3 times. आप इस बात को देख सकेंगे कि ये जो शब्द है चिंता ना करना, इसको एक ही अध्याय में 3 बार इस्तेमाल किया गया है। Well, what I mean by saying this is, मैं इसको इस प्रकार कह रहा हूँ, if you will see from the Bible in verse 25, अगर आप अपने बाइबल में 25वें पद को पढ़ेंगे so it says like that, तो वो इस प्रकार कहता है, that do not worry about your life. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। Do not worry about your life. अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। Well, I consider this one as the Father God speaking through the very mouth of Jesus. मैं इस बात को इस प्रकार समझता हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, वो यीशु मसीह के मुख के द्वारा इस बात को कह रहा है। He's telling unto all those people who are listening from the Sermon of the Mount. वो जो लोग हैं जो पहाड़ी उपदेश को सुन रहे थे, उन सारे लोगों से वो ये बात को कह रहा है That you don't need to worry about your life. कि आपको अपने प्राण की चिंता करने की जरूरत You नहीं। don't need to worry about your life. अपने प्राण के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So when the first time this word is used, do not worry. तो अब जब पहली बार ये शब्द का इस्तेमाल किया गया कि चिंता ना करना, It was Father God who was telling us that we don't need to worry. तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें ये कह रहा है कि तुम्हें चिंता ना करना। Hallelujah. हालेलुया। Well, coming forward to the verse 31, तो हम आगे जब 31वें पद को पढ़ते हैं, then again it says like that do not worry, saying. तो वो इस प्रकार दोबारा कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। Do not worry and saying. चिंता करके ये ना कहना। Well, I believe that it was Jesus now who was saying that not to worry and say something. मैं कह रहा हूं कि अब ये यीशु मसीह है जो कह रहा है कि चिंता करके तुम ये ना कहना। But why Jesus is saying that you don't need to worry and say? ऐसा क्यों है कि यीशु मसीह कह रहा है कि तुम चिंता ना करना और कुछ कहना भी मत? Well, the reason is because इसका कारण ये है, often when we do get worried about something, कई बार जब हम किसी बात को लेकर के चिंता करते हैं, we begin to speak those words, those things that we should not speak. हम उन शब्दों को बोलने लग जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। I said that often when we do get worried about something, मैं कह रहा हूं कि कई बार जब हम किसी बात को लेकर चिंता करते हैं, we begin to speak those words that we should not speak. हम उन शब्दों को बोलने लगते हैं जो हमें नहीं बोलने We चाहिए। releases those words from our mouth that should not need to come out of our mouth. हम अपने
अपने मुख से उन शब्दों को निकालते हैं जो शब्द हमारे मुंह से कभी नहीं निकलने चाहिए। We speak those words that could contradict the will of God and the word of God. उन शब्दों को हम अपने मुंह से निकालते हैं जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल नहीं खाते, Because our words carries the power to create and to destroy. क्योंकि हमारे शब्द उस सामर्थ को रखते हैं कि वो किसी चीज को बना सकते हैं या खत्म कर I सकते हैं। said that our words carries the power to create or to destroy. मैं कह रहा हूं कि हमारे शब्द ये सामर्थ को रखते हैं कि वो कुछ बना सकते हैं या कुछ बिगाड़ भी The सकते हैं। scripture says in the book of Proverbs chapter 18 verse 21. परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन के 18वें अध्याय के 21वें पद में, It says like that death and life are in the power of the tongue. वो इस प्रकार कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। Hallelujah. 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 So our words carries a power to create something or to destroy something. तो हमारे शब्द उस सामर्थ को रखते हैं कि वो कुछ बना सकते हैं या किसी चीज को मृत्यु दे सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. An unknown author said it like that. एक बहुत ही जाने माने लेखक ने इस प्रकार कहा है। And an unknown author said it like that. कोई एक अनजान ऑथर है जिन्होंने इस प्रकार कहा है That your words can create your tomorrow, so choose wisely what to speak. कि आपके जो शब्द हैं वो आपके कल को बना सकते हैं, इसलिए बहुत ही बुद्धिमानी से अपने शब्द को चुने। Your words can create your tomorrow, so choose wisely what to speak. आपके जो शब्द हैं वो आपके कल को बना सकते हैं, तो बहुत ही बुद्धिमानी से अपने हर एक शब्द को चुने। He goes on and added it further वो आगे चलकर इस प्रकार कहते हैं that your words can build up a relationship and can break up a relationship. कि आपके जो शब्द हैं, आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द किसी रिश्ते को बना भी सकते हैं या किसी रिश्ते को बिगाड़ सकते So हैं। choose wisely what to speak. तो बहुत ही बुद्धिमानी से चुने कि क्या कहना है। He further goes on and added one more thing. वो आगे चल करके एक बात को और इसमें जोड़ते हैं। He says like that your words decides your destiny, that where you want to be. So choose wisely where you want to be. कि आपके जो शब्द है वो इस चीज को निश्चित करते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है, किस स्थान तक पहुंचना है। तो जिस स्थान तक आपको पहुंचना है उसके लिए आपको बहुत ही बुद्धिमानी से अपने शब्द को चुनने की जरूरत है। Your words creates your tomorrow and enlighten it. आपके जो शब्द है वो आपके कल को बनाते हैं और उस पर प्रकाश को डालते हैं, Or it can put you into darkness. या फिर वो आपको अंधकार में लेकर के जा सकते हैं। Therefore, be wise before releasing every next word from your mouth. तो बहुत ही बुद्धिमान होकर के चुने कि आपके मुख से अगला शब्द क्या निकलने वाला I है। said that be wise before releasing every next word from your mouth. बहुत ही बुद्धिमान होकर के ये चुने कि अगला शब्द आपके मुख से क्या निकलने वाला है, उसे बुद्धिमानी से चुने। I really love how King Solomon has quoted this one thing. मैं सच में मुझे बहुत पसंद है कि राजा सुलेमान ने इस एक बात को अपने नीति वचन में लिखा। He has quoted this one thing in the book of his Proverbs उन्होंने अपने नीति वचन में इस बात को लिखा through the inspiration of Holy Spirit. पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के। He says in the book of Proverbs chapter 10 verse 19. वो नीति वचन उसके 10वें अध्याय उसके 19वें पद में इस प्रकार He कहते हैं, says it like this, that bite your tongue and you will be wise. वो इस प्रकार कहते हैं कि अपनी जीभ को काट ले और आप बुद्धिमान हो Bite जाएंगे। your tongue and you will be wise. आप अपनी जीभ को काटे और आप बुद्धिमान होंगे। So you see, the primary way to become wise is by biting your own tongue. तो जो प्रमुख तरीका है कि आप बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं वो ये है कि अपनी जीभ को काटे। Hallelujah. 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 If someone will gonna ask you that how to become wise, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं बुद्धिमान कैसे बन सकता हूँ, then you can quote this scripture that you need to bite your tongue. तो आप इस बात को, इस वचन को कोट कर सकते हैं कि तुम्हें अपनी जीभ को काटने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. Well, it may seem to you some kind of a foolish or a nonsense thing, ये कोई ऐसी बेकार सी बात या बिना बेबुनियाद सी बात लग रही होगी, but trust me, पर मेरा विश्वास करें it is the wise advice ये बहुत ही बुद्धिमानी की एक एडवाइस है that you are getting from the wisest man, जो आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं, whom God has endowed with the gift of wisdom. जिनको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से भरा है। Hallelujah. हालेलुया। And since Solomon is the wisest man, और क्योंकि जो सुलेमान है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, since he said this, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा है that bite your tongue and you will be wise, कि अपनी जीभ को काटे और आप बुद्धिमान हो then I जाएंगे, believe that he has said it with his own personal experience. तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि उन्होंने
खुद के रोजमर्रा के एक अनुभव से ये आपको बात कही है। He has gone through from season and time after time by biting his own tongues again and again. बहुत सी बार हो सकता है कि बहुत से ऐसी सिचुएशंस में से, ऐसे ऋतुओं में से होकर के वो गए हैं कि उन्होंने अपनी जीभ को काटा होगा। Although it's not something that is mentioned in the scripture or written in the scripture, हालांकि ऐसा परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है that while ruling the children of Israel, कि इजराइलियों की संतान पर राज्य करने के while दौरान, ruling over the nation of Israel, इजराइल जो देश है उस पर राज्य करने के दौरान, while judging the people, लोगों का न्याय करने के दौरान, Solomon bit his own tongue, जो सुलेमान है उन्होंने अपनी जीभ को काटा, and after biting his own tongue, और अपनी जीभ को काटने के बाद wisdom begins to release from his mouth. उनके मुख से बुद्धि के वचन निकलने Have you ever लगे। seen something written inside of it like that? क्या आपने ऐसा कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ No, देखा no, no, है? no, 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 certainly not. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। But the reason I am saying that is लेकिन मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूँ because if Solomon has wrote this one thing in his Proverbs, कि अगर सुलेमान ने अपने नीति वचन में इस बात को लिखा है through the inward inspiration of Holy Spirit, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पा करके, then तो it is the actual key to become wise. ये एक असल कुंजी है बुद्धिमान होने के लिए। Then I believe that he had practiced it too in his personal life to demonstrate God's wise judgment. मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि उन्होंने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया होगा, दर्शाया होगा कि परमेश्वर के सही न्याय को, उचित न्याय को कैसे लोगों तक पहुंचाए। By biting the tongue of his own mouth that is associated with his carnal mind. अपनी जीभ को काट लेना, क्योंकि अपनी जीभ को काट लेना जो उनके शारीरिक मन से जुड़ी हुई है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 The moment when he bite his own tongue, जिस क्षण उसने अपनी जीभ को काटा है, that is associated with his carnal mind, जो उसके शारीरिक मन से जुड़ी हुई he है, had experienced, he would have experienced this, that after that, that wisdom of God begins to release from his mouth. ये अनुभव हो सकता है उन्होंने किया होगा कि ऐसा करने के बाद जो परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की दी हुई ज्ञान है, उनके मुख से निकलने लगी। That's why he has quoted this thing in Proverbs 10:19. इसीलिए उन्होंने नीति वचन के 19वें अध्याय में इस बात को लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। Because every word that is written in the scripture is written through the inspiration of Holy Spirit. क्योंकि हर एक वो शब्द, हर एक वो वचन जो इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, वो पवित्र आत्मा से प्रेरणा पा करके लिखा And if गया the है। Bible is saying us to do so, और अगर वचन, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कह रहा है कि ऐसा करना है, then we need to do it. तो हमें ऐसा ही करना है। There is no if and but in that. उसमें कोई भी आपके पास में इफ और बट नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You see, there is a reason God has designed our face and our mouth in such a way. आप देखिए कि परमेश्वर ने हमारे चेहरे का निर्माण जो है वो इस प्रकार किया है। Hallelujah. I said that there is a reason that God has designed our face and our mouth in such a way. मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जब हमारे चेहरे का निर्माण किया तो किसी कारण से इस प्रकार हमारा निर्माण किया। There is a reason that these teeth are on the outside as a protective cage for our tongue. क्योंकि जिस प्रकार हमारे जो दांतों का निर्माण किया गया है, उसका निर्माण इस प्रकार किया है कि वो हमारे जो मुंह है उसको एक सुरक्षा देने के प्रकार में, जैसे एक दरवाजे के समान उसको बनाया गया है। I said that these teeth are kept outside of our tongue as a protective cage. मैं कह रहा हूं कि हमारे जो दांत हैं उनको बाहर की तरफ रखा गया है, हमारी जीभ के बाहर रखा गया है, एक पिंजरे के समान। Hallelujah. हालेलुया। Because wherever it gets out of control, wherever this tongue gets out of control, क्योंकि जब ऐसा होता है कि हमारी जो जीभ है वो हमारे काबू से बाहर होती है, then the teeth as well as this lips and as well as this whole combined mouth can put it under control. तो ये दांत का निर्माण और इन होठों का और एक पूरे मुख का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि उस पर नियंत्रण पा सके। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। To put under control, this one thing is to be put under control by these three things. जो ये एक चीज है जीभ, उसको नियंत्रण में लाने के लिए इन तीन चीजों को बाहर रखा गया है। That is our teeth, our lips and our whole mouth. जो है कि हमारे दांत, हमारे होठ और हमारा पूरा मुंह है। It's kind of a 3x security, or you can say it's kind of a Z plus security. आप इसको कह सकते हैं कि 3 गुना बढ़ी हुई एक सुरक्षा
कवर है जो उसको बनाए रखा है। Or you can say it as a Z plus security. और आप इसको Z+ सिक्योरिटी के रूप से भी कह सकते हैं। How much privileged our tongue is. हमारी जीभ देखिए कितनी वैल्यू रखती है, कितनी बहुमूल्य है, That it is experiencing this Z plus security in it itself. कि वो अपने आप ही उस Z+ सुरक्षा को अनुभव कर रही है। Because when the moment when we get worried, क्योंकि जब उस क्षण जब हम चिंता करते हैं, we used to or we begin to speak those words that are contrary to the will of God and the word of God. तो हम उन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। Our word of faith turns into our words of fear. हमारा विश्वास के वचन जो है वो एक भय के वचन बन जाते हैं। Our word of belief turns into our word of doubt. हमारे विश्वास के जो वचन है वो एक संदेह के वचन में परिवर्तित हो जाते Our हैं। words of surety turns into our word of uncertainty and insecurity. हमारे जो निश्चिंतता के जो शब्द हैं वो एक अनसर्टेनिटी के शब्द बन जाते हैं, या हम कंफ्यूजन के शब्द को ले आते हैं, And that can contradict the will of God. और वो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाते, परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल नहीं खाते। That's why Jesus said in Matthew chapter 6 verse 31. इसलिए परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसके 31वें वचन में कहा है, Therefore do not worry saying. इसलिए चिंता करके तुम यह ना कहना। Therefore do not worry saying. इसलिए चिंता करके ये ना कहना, Because when you and I get worried, क्योंकि जब आप और मैं चिंता करते हैं we begin to speak the words that God doesn't want us to speak. तो हम उन शब्दों को बोलने लग जाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बोले। And because our words carries the power to build our future or to destroy it, और क्योंकि हमारे जो शब्द है वो उस सामर्थ को रखते हैं जो हमारे कल को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, so we need to speak right in order to live right. तो अगर हमें सही जीवन जीना है तो हमें सही बातों को बोलना पड़ेगा। Speak the word and the promises of God over your situation and circumstances. आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी चिंताओं के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोले, परमेश्वर की जो वायदे हैं उनको बोले, And see it manifested. और उसको पूरा होते हुए देखे। But still there is one question. लेकिन अभी भी ये एक सवाल रह गया है That why does a mankind worry? कि क्योंकि मनुष्य जाति चिंता क्यों करती है? What's the actual reason that everybody in this earth getting worried about? कि असल कारण क्या है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति चिंता कर रहा है? Well, Jesus got the answer to that one. यीशु मसीह के पास में उस चीज का भी उत्तर है। In one of his sermon that is mentioned in Matthew chapter 6 from which we are studying on. उनके एक उपदेश में जो मत्ती रचित समाचार उसके 6वें अध्याय में लिखा है, From which we are studying on. जिसके अंदर से हम पढ़ रहे हैं। It says from Matthew chapter 6 verse 25, it says that don't get worried about food and drink. इसमें इस प्रकार कहता है मत्ती रचित समाचार उसके 6वें अध्याय उसके 25वें वचन में कि तुम ये चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। It goes on in Matthew chapter 6 verse 31 says that don't get worried about your clothing, that what you will wear. वो आगे चलकर इस प्रकार 31वें पद में इस प्रकार कहता है कि ये चिंता ना करना कि तुम क्या पहनोगे। Hallelujah. It says goes on and says like this in verse 34 that don't get worried about your tomorrow. ये आगे चलता है और 34वें पद में इस प्रकार कहता है कि अपने कल की चिंता ना करना। So you see that the entire world, every individual person तो आप देखिए कि पूरे संसार में हर एक व्यक्ति is actually worried about something. वो किसी ना किसी बात को लेकर के चिंतित है। It doesn't matter that from which country or state you come from. ये इस बात पर मायने नहीं रखता कि आप कौन से देश से कौन से शहर से आते हैं। It doesn't matter that how much rich or poor you are. ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अमीर और कितने करीब हैं। But every person is actually worried about these three things primarily. लेकिन हर एक जो मनुष्य है वो इन 3 बातों के लिए तो चिंता करता ही है। That Christ is speaking about in Matthew chapter 6. जो मसीह मत्ती रचित समाचार उसके 6वें पद में कह रहे हैं। Every person is worried about food and drink. हर एक जो मनुष्य है वो खाने पीने के लिए चिंता करता है। Everyone is worried about their clothing.
हर एक अपने पहनने के लिए चिंता करता है and everyone is worried about their tomorrow. और हर मनुष्य अपने कल की चिंता करता है। Hallelujah. 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 So you see that you are not only the one who's thinking about this thing, or you are not only the one who's thinking in that way. तो आप ये सब बात को समझे कि आप अकेले नहीं है कि आप इन बातों की चिंता कर रहे हैं या उस तरीके से आप सोच रहे हैं, But the entire world used to think and perceive the things in that way only. लेकिन पूरा संसार इसी तरीके से सोचता है और चिंता करता है। The entire world is reasoning upon these three questions, that what shall we gonna eat next? तो पूरा जो संसार है वो इसी 3 बातों के ऊपर चिंता कर रहा है या सोच रहा है कि अगला अब हम क्या खाएंगे, What gonna happen to us in tomorrow? कि कल हमारा क्या होगा, Do we have clothing upon our body? क्या हमारे शरीर के ऊपर ढकने के लिए कपड़े हमारे पास होंगे। But that's what the world does. In fact, that's what we did too till now. यही है जो संसार ऐसा ही करता है और हमने भी आज तक ऐसा ही किया है। Hallelujah. 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 But that's what you and I don't need to do it. लेकिन आपको और मुझे ये नहीं करने की जरूरत है। That's not how we should think. ऐसे इस प्रकार हमें नहीं सोचना है, Because Jesus said for us that क्योंकि यीशु ने हमारे लिए इस प्रकार कहा we don't need to worry about anyone of them. कि हमें किसी बात को लेकर के चिंता करने की जरूरत We नहीं। don't need to worry for any one of them. हमें इनमें से किसी बात को लेकर के चिंता करने की जरूरत You नहीं। and I don't need to worry about our clothing. आपको और मुझे अपने कपड़ों के लिए, अपने पहनने के लिए चिंता करने की जरूरत You and नहीं। I, we don't need to worry about our food and drinks. आपको और मुझे अपने खाने पीने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। You and I, we don't need to think about or worry about our way of living. हमें अपने जीने के तरीके के लिए या जीने के लिए किसी बात को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। In fact, you and I, we don't need to get worried about our tomorrow. लेकिन आपको और मुझको वरन कल की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। Let tomorrow worry about itself. कल अपनी चिंता आप ही कर लेगा। Hallelujah. हालेलूया। Because notice that before every word of worry in the scripture, कि इस बात पर ध्यान दें कि हर एक शब्द जब चिंता इस वचन में लिखा हुआ है उससे पहले I want you to draw your attention towards your Bible for a moment. मैं चाहूंगा कि आप कुछ समय के लिए अपनी बाइबल पर अपने ध्यान को लेकर के आए। Notice that before every word of worry, ध्यान दें कि हर एक चिंता शब्द से पहले there is a word before that, and that is do not. एक शब्द और है उससे पहले जो लिखा है कि ना करना। There is a word before that word worry, and that is do not. वो जो शब्द है चिंता, उससे पहले एक और शब्द है कि नहीं करना। Do not worry about your life. अपने जीवन के लिए, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। Do not worry about your clothing. अपने पहनने के लिए चिंता ना करना। Do not worry about your food and drink. अपने खाने पीने के लिए चिंता ना करना। Do not worry about your tomorrow. अपने कल की चिंता ना करना। Do not, do not, do not, do not. ना करना, ना करना, ना करना, ना करना। Because that's what God wants you to do. क्योंकि यही है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है I कि हम said that करें। that's what God wants you to do. कि ये ही बात है जो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं करें। That is that we don't need to get worried about any one of them. और वह ये बात है कि आपको और मुझे किसी भी चीज को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं। We don't need to get worried about anything. हमें किसी बात को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं। Because it's not an option that is Jesus giving us, that we don't need to get worried or we can get worried. क्योंकि ये कोई ऑप्शन नहीं है या परमेश्वर हमें चुनने के लिए नहीं कह रहा है कि तुम चुन सकते हो कि चिंता करो या मत करो। But it is a simple, straightforward instruction or a commandment from Jesus. लेकिन एक सीधा सा निर्देश है, परमेश्वर की आज्ञा है जो आपको और मुझे दे रहा है। That is, do not worry. जो ये है कि चिंता ना करना। Do not worry. चिंता ना करना। Notice how beautifully Jesus has quoted this word, do not, before worry. आप ध्यान दें कि कितने सुंदर रूप से यीशु मसीह ने इस शब्द को इस्तेमाल किया है चिंता से पहले
कि ना करना। That means that we need to give more importance onto the negative aspect which Jesus is emphasizing upon. तो आप और मैं जो है, आप और मुझे इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उसका जो नकारात्मक रूप है उस पर नहीं, लेकिन जो उसका सकारात्मक रूप है उस पर। That through that negativity we can bring positivity in our life. कि उस जो नकारात्मक शब्द है चिंता, उससे हम अपने जीवन में एक सकारात्मक चीज को ला सकते हैं। That through that word do not we can bring positivity. Do not worry. So the moment when Jesus is doing this thing that he's adding do not word before worry, it means that he is giving more importance for us to understand that we don't need to get worried. ये जो शब्द है न करना, जो एक नकारात्मक शब्द है, उससे परमेश्वर यीशु मसीह चाह रहा है कि हम अपने जीवन में एक अच्छी बात को, एक सही बात को लेकर के आए कि तुम्हें चिंता ना करना, तुम्हें चिंता ना करना। Hallelujah. हालेलुया। But there is still one more question. लेकिन एक और सवाल है जो रह गया है But Pastor Ronald, how can we not worry about anything? कि पास्टर रोनाल्ड, हम हमारे जीवन में किसी बात को लेकर चिंता कैसे ना करें। How can we stop such thoughts of worry that is constantly in our head? वो जो विचार है चिंता के हमारे मन में बार बार आते हैं, हम उसे कैसे रोकें। How can we get rid of those words that our mouth want to speak out of our concern? हमारी चिंता, हमारी परवाह करने के दौरान जब वो जो चिंता के शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, हम उसे कैसे रोकें। Well, the answer to that is उसका जो उत्तर है वो ये है, by simply practically applying what Peter said in 1 Peter 5:7. लेकिन उसको जो पतरस की पहली पत्री उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में जो उसने लिखा है, उसे सिंपली तरीके से उसे हमें अपने जीवन में निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। That is to cast our concern. वो ये है कि अपनी चिंताओं को उंडेल दें, That is to cast our worries and tension कि अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को, अपनी परवाह को उंडेल दें unto the hands of Lord. परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हाथों में। Turning our worries unto Him. अपनी चिंताओं को परमेश्वर की ओर मोड़ दे, Turning our tensions and problems unto Him. अपनी समस्याओं को, परेशानियों को उसकी ओर मोड़ दे And let Him take care of it. और उसे उसका ध्यान करने दें। Because that's what the scripture says. क्योंकि वचन भी इसी प्रकार कहता है That He cares for you and I. कि वो आपकी और मेरी परवाह करता है। Hallelujah. हालेलुया। So in simple words, तो एक साधारण तौर से we need to be faithful in the casting part. हमें जो उंडेलने का जो भाग है उसमें विश्वास योग्य होने की जरूरत है। Then He will be faithful in the taking care of our issues. तो वो हमारी परवाह करने के लिए, चिंता करने के लिए विश्वास योग्य हो We जाएगा। need to be faithful in the casting. हमें उंडेलने में विश्वास योग्य होना है, Then He will be faithful in taking care of our issues. तो वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, परवाह करने के लिए विश्वास योग्य रहेगा। If we won't be faithful in casting, अगर हम उंडेलने में या सौंप देने में विश्वास योग्य नहीं हुए, then He won't be faithful in caring either. तो वो हमारी चिंता करने में, हमारी परवाह करने में भी विश्वास योग्य नहीं होगा। So in simple words, तो साधारण तौर पे शब्द में cast your cares, concerns upon the Lord because He cares for you. अपनी सारी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने उंडेल दे, क्योंकि वो आपकी परवाह करता है And He will take care of your concerns too. और वो आपकी परवाह के, आपकी चिंताओं के बारे में ध्यान करेगा। But still, Pastor, what shall we do of these thoughts of worry or concern that is constantly hovering over us like a bird who want to build a nest upon our head? पर पास्टर, हम क्या करें कि जो चिंता के जो विचार है बार बार हमारे सर पे एक चिड़िया के घोंसले के समान इकट्ठा होते जा रहे हैं। Who's trying to build a nest upon our head? कि एक घोंसला, जैसे जिस प्रकार एक चिड़िया घोंसले को बनाती है, उस प्रकार ये विचार हमारे सर पे घोंसले को बनाए जा रहे हैं। Simple, don't let her build a nest upon your head. तो साधारण तौर पर उसे अपने सर पर घोंसला ना बनाने दे। Don't let her build a nest upon your head by doing simply this thing. तो एक काम को करके अपने सर पर उसे घोंसला ना बनाने दे। By simply seeking the kingdom of God and His righteousness at the first place. तो उसके राज्य, बस एक साधारण सी चीज करनी है, वो है उसके राज्य और धर्म की खोज करनी है प्राथमिक तौर से। Because that's the concluding statement of Jesus, who is emphasizing upon the worry part again and again. क्योंकि वो एक
जो अंत का जो एक भाग है जिस पर जब परमेश्वर चिंता के ऊपर बार बार बोल रहा है, तो ये एक अंत का जो एक वाक्य है जो परमेश्वर कह रहा है। It says in the Gospel of Matthew chapter 6 verse 33. वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 33वें वचन में कह रहा है, But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. क्योंकि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। So how to put an end to all your worries? तो अपनी चिंताओं का अंत कैसे करें? By simply seeking the kingdom of God and his righteousness. पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करने के द्वारा। By simply seeking the kingdom of God and his righteousness at first place. पहले रूप से, प्राथमिक रूप से, प्रमुख रूप से परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने के द्वारा। By doing this, you and I can put an end to our worries. ऐसा करने से आप और मैं अपनी चिंताओं को अंत कर सकते हैं। By making God's kingdom and his righteousness as the very first place in our life. परमेश्वर के राज्य को और धर्म को, धार्मिकता को पहला प्रमुख स्थान देने के द्वारा, This is how we can put an end to our worries. ऐसे ही करके हम अपनी चिंताओं का अंत कर सकते हैं। But not only that, पर केवल इतना ही नहीं, the moment when we begin to do so, the moment when we begin to seek first the kingdom of God and his righteousness at first place, जब वो क्षण है कि जब हम पहले प्राथमिक तौर से परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने लगते हैं, along with that, उसके साथ, along with our problems getting to an end to our worries, उसके साथ जब हमारी चिंताओं का अंत हो रहा है, along with that, उसके साथ में we will get the blessing of addition pursuing us wherever we are going. हम परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं जहां भी हम जा I रहे हैं। said the blessing of addition pursuing us wherever we are going. जो और जो बढ़ोतरी की आशीष है, जहां भी आप जा रहे हैं आपका पीछा करती जा रही है। Hallelujah. So if you goes to the left with this consciousness that for me God is at first and his kingdom is at first place, तो अगर आप बाईं ओर मुड़ते हैं यह सोच करके कि परमेश्वर का राज्य मेरे लिए प्राथमिकता है, उसकी धार्मिकता मेरे लिए प्राथमिकता then the है, rest of the other things, तो अब जब बाकी की चीजें हैं, then you will see that wherever you are going, that blessings are pursuing you. तो आप इस बात को देखेंगे कि जहां भी आप जा रहे हैं वो आशीषें जो हैं वो आपका पीछा करती हुई आपकी ओर आ रही हैं। Or if you goes to the right with this consciousness that for me God and his kingdom is at first place, then the rest of the other things, तो अगर आप दाईं ओर मुड़ते हैं ये सोच करके कि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता मेरे लिए प्राथमिकता है, then the rest of the other things, तब जो बाकी की चीजें हैं, then you will see that wherever you are going through, that blessing of addition are pursuing you over there also. तो वो जो और बढ़ोतरी की आशीष है वो आपका पीछा वहां पर भी कर रही है, उस और भी कर रही है। See, it's not about a place, a right or left direction. ये इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आप बाईं ओर है या दाईं ओर है, It's not about direction, ये एक दिशा की ओर नहीं, but it's a matter about your priorities. ये आपकी प्राथमिकता की बात है। Well, let me say it in this way. मेरे को इस प्रकार इस बात को कहने दें That the principle of addition and multiplication is directly proportional to the principle of your priorities. जो आपके जो बढ़ोतरी की आशीष है उसका जो सिद्धांत है वो उसके बराबर है कि आपकी क्या प्राथमिकता है। No. It is like this, that the principle of addition and multiplication is directly proportional to the प्रिंसिपल ऑफ योर प्रायोरिटीज। हिंदी में कुछ इस प्रकार कि आपके गुणात्मक और आपकी बढ़ोतरी का जो सिद्धांत है वो असल में आपकी प्राथमिकता के सिद्धांत के साथ में निर्भर करता है। यदि आप अपने प्राथमिकता के सिद्धांत में बने रहेंगे तो उसी के ऊपर आपकी बढ़ोतरी की और आपकी गुणात्मक होने की आशीषें निर्भर करती है। सो द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज directly proportional to the principle of your priorities. आपके गुणात्मक होने की और बढ़ोतरी होने का जो सिद्धांत है वो आपकी जो प्राथमिकता है उस पर निर्भर करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Which means that when you have God at the first place in your priority list, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके प्राथमिकता के उस लिस्ट में परमेश्वर सबसे ऊपर है then automatically you will live a life without worry.
तो आप उसके साथ तब आप निश्चिंत होकर के अपने जीवन को अपने आप जीने लगेंगे। then automatically you will live a life without worry. तो अपने आप एक ऐसा जीवन को जिएंगे जिसमें चिंता नहीं होगी। Automatically blessings will gonna pursue you and follow you wherever you go. तो अपने आप जहां भी आप जाएंगे आपके पीछे पीछे वो आशीष आपका पीछा करते हुए आ जाएंगी। Things will get added on and multiplied in your life. जीवन में आपके जीवन में वो चीजें बढ़ती जुड़ती जाएंगी और गुणात्मक रूप से बढ़ती जाएंगी, Without you making any attempt or an effort for that. बिना आपके कोई प्रयास किए। Hallelujah. हालेलुया। Because that will be the result of your priorities which you have set apart for the Lord. वो उस जब आपने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए जो प्राथमिकता दी है उसका उत्तर स्वरूप, उसका फल स्वरूप आपको अपने जीवन में ऐसी चीजें मिलेंगी। I said because that will be the result of your priorities which you have set apart for the Lord. आपने जो अपने जीवन में जो परमेश्वर के लिए प्राथमिकताएं दी हैं उसका फल स्वरूप, उसका रिजल्ट स्वरूप आपको अपने जीवन में ऐसी ये चीजें देखने को मिलेंगी। So prioritizing Jesus at the first place can put an end to your worries. तो परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देने के द्वारा आप अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं का अंत कर सकते हैं। Prioritizing Jesus at the first place can put an end to your worries. आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिकता देने के द्वारा आप अपनी चिंताओं का अंत कर सकते हैं। By simply seeking the kingdom of God 24x7, निरंतर परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने के द्वारा 24 घंटे सातों दिन, by not skipping any single day, बिना किसी दिन चूके you can live a carefree life and a life without worry. आप एक निश्चिंता का जीवन को जी सकते हैं या ऐसे जीवन को जिसमें चिंता नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Because that's the ultimate solution to end all your worries permanently once and for all. क्योंकि यही एकमात्र सल्यूशन है आपके जीवन में जो चिंताओं को अंत कर सकता है, That can permanently end your worries once and for all. जो आपके जीवन में चिंताओं का अंत एक ही बार में हमेशा के लिए वो एक अंत को लेकर के आ जाएगा। And with it, there is an add-on benefit with it as well. और उसके साथ में एक और बढ़कर के एक और आपके लिए एक बेनिफिट, एक अच्छी बात और है। That is that the blessings of the Lord will pursue you wherever you go and wherever you will be. कि वो बात ये है कि जहां पर भी आप जाएंगे आपके साथ साथ आपके पीछा करते हुए परमेश्वर की बढ़ोतरी की आशीष भी आएगी। I can tell you this by my daily life experience that in our family, me and my wife has seen that thing. मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि अपने जीवन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, कि मैंने और मेरी पत्नी ने इस बात को अपने जीवन में देखा है। In every new day when we begin by seeking God's kingdom at the first place. कि जब हर एक उस नए दिन में जब हमने सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करी And giving him that first priority in our life. और परमेश्वर को अपने जीवन में वो पहली प्राथमिकता दी, Then it doesn't matter how much challenging the day would be. तो ये मायने नहीं रखता कि कितना चुनौतियों भरा आपका वो दिन था। It becomes much more easier for us to face all those challenges. हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया उस दिन को जीना, उन चुनौतियों का सामना करना। In fact, we are able to dodge these thoughts of concerns and worries and insecurities very easily. वरन हम उन जो चिंताएं हैं और जो परेशानियां हैं उनको चकमा दे पाए ऐसा करने के दौरान। We are able to do it very easily. हम बहुत ही आसानी से ऐसा कर पाए। But the day we are unable to do so, लेकिन उस दिन जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देने से चूक गए, the day when we are unable to seek his kingdom at the first place, वो दिन जब हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को प्राथमिकता देना चूक गए, so then we find it hard for us to dodge even the simple and smallest and tiny problems. वो दिन हमारे लिए वो एक छोटी सी समस्या को भी चकमा देना बहुत ही मुश्किल हो गया। We find it hard for ourselves to dodge these thoughts of worries and concerns and insecurities. हमारे मन में वो चिंता के विचारों को, वो समस्या के विचारों को, वो परवाह के विचारों को चकमा देना बहुत ही मुश्किल हो गया। In fact, the smallest problem seems like a huge mountain for us to get away. वरन एक छोटी सी समस्या हमारे लिए एक बड़े पहाड़ के समान लगने लगी कि हम इससे बच के कैसे निकलेंगे। So I want to end by saying this unto you.
तो मैं ये बात को कह करके अंत करना चाहूंगा, that my dear beloved brother or sister in Christ, मेरे प्रिय भाई बहनों मसीह में, there is an end to your worries. आपकी चिंताओं का अंत है। That can begin by resting your case unto Jesus. और वो उसकी शुरुआत इस प्रकार हो सकती है कि अपने केस को, अपने विषय को यीशु मसीह के हाथ में सौंप Because दें। we, the children of God, are not actually called to live a life of worry. क्योंकि हम जो परमेश्वर की संतान हैं, उनको असल में चिंता से भरे हुए जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया। You and I are not called to live a life full of concern. आपको और मुझे एक परवाह से भरे हुए जीवन को जीने के लिए नहीं बुलाया Because गया, we have learned today क्योंकि हमने आज इस बात को सीखा है that every single time Jesus spoke about worry, कि हर बार जब यीशु मसीह ने चिंता के बारे में बोला, he used this word before that worry, and that is do not worry. चिंता से पहले उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि ना करना, डू नॉट, चिंता ना करना, Which means that we need to learn to say no to our worries and concern in our life. उसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में चिंता को और परवाह को ना कहना सीखना होगा। Hallelujah. Hallelujah. Because we don't need to worry. We don't need to worry. It is not an option, but it is a simple, straightforward instruction and a command from Jesus. क्योंकि ये हमारे लिए चुनने की बात नहीं है कि चिंता करना या नहीं करना, वरन परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से ये एक सीधा निर्देश और एक आज्ञा है कि चिंता ना करना। We don't need to worry about anything in our life. हमें हमारे जीवन में किसी बात को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं, But instead of that, we need to put him at the first place लेकिन उसके बजाय हमें उसे पहला स्थान देने की जरूरत and है, give him that priority which he deserves and belongs and is worthy of. वरन वो जो प्राथमिकता जो वो डिजर्व करता है, या जो प्राथमिकता परमेश्वर की ही है, वो प्राथमिकता परमेश्वर को देने की जरूरत है। Because by giving him the first place in our life, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देने के द्वारा we can put an end upon our worries. हम हमारी चिंताओं को अंत कर सकते हैं। You and I can end our worries by giving him that first place. परमेश्वर को वो पहला स्थान देने के द्वारा हम हमारी चिंताओं का अंत कर सकते And not हैं। only that, वरन ऐसा ही नहीं, but when we do so, then his blessings begin to pursue us wherever we go. पर ऐसा करने से खाली चिंताओं का अंत ही नहीं, वरन वो जो आशीष हैं वो आपका पीछा करेंगे जहां भी आप जाएंगे। So that's how God put an end to all our worries. तो ऐसा ही है, जो ऐसा ही करके परमेश्वर ने हमारी चिंताओं का अंत किया है। When you make him number one in your priority list. जब आप अपने जीवन में प्राथमिकताओं में पहला स्थान यीशु मसीह को, परमेश्वर को देंगे। If you will not give him that number one place in your priorities, जब आपने अपने जीवन में प्राथमिकताओं में पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दिया, then I am sure for this that your worries will never gonna end. तो मैं इस बात को निश्चित रूप से जानता हूं कि आपकी चिंताओं का अंत कभी नहीं हो You will सकेगा। still gonna struggle with this problems and this worries, thoughts and everything. आप इन समस्याओं से रोजमर्रा के जीवन में ये जो विचार है सब चिंता के, उससे परेशान होते रहेंगे। But the moment when you will give him that first place which he deserves, पर वो क्षण जब आपने परमेश्वर को जो वो पहला स्थान जो परमेश्वर का है वो आप परमेश्वर को देंगे, that's how then God will gonna end all your worries. तो ऐसा करने से परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को अंत तक लेकर के आएगा, अंत कर देगा। Then you will gonna live a carefree life which God has initially and primarily planned for you. And तब आप एक निश्चिंता का जीवन जी पाएंगे जो परमेश्वर ने प्रमुख रूप से आपके लिए रखा है। I believe you have learned something. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। May God bless you from his word. परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष